Hello everyone, welcome back to our channel Neural Minds. I am Vijay and in this video we are going to learn one of the most important library in Python for data science which is called Panda. अभी तक हम लोगों ने कोड पाइथन एंड numpy पढ़ चुके हैं बट जब इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो जब डेटा हमारे पास आता है ना तो वो क्लीन एरे में होता है ना ही क्लीन लिस्ट में। यहीं पर पांडा आता है। तो पांडा क्या करता है हेल्प हमें डेटा को क्लीन करने में मदद करता है, डेटा को लोड करने में मदद करता है, करने में मदद करता है जस्ट लाइक जैसे हम एक्सेल में करते हैं। बट पांडा एज कम्पेयर टू एक्सेल वो ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। In this video we will going to learn Panda and their two primary data structure series and data frame. So what is Panda? Panda is powerful data manipulation tool library in Python, widely used for data analysis and data cleaning. ये मैनिपुलेशन डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है पाइथन में जो बहुत पावरफुल है। बेसिकली हम उसको डेटा एनालिसिस और डेटा क्लीनिंग के पर्पस के यूज़ करते हैं। पांडाज में दो क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा फ्रेम और सीरीज। Series series is a one-dimensional array like object that can hold data of any type and has level indices. सीरीज एक कॉलम वन सिंगल कॉलम होता है जिसमें हम एक टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ये वन डायमेंशनल होता है। बट डेटा फ्रेम इज ए टू डायमेंशनल साइज म्यूटेबल एंड पोटेंशियली heterogeneous tabular data structures with level access. तो डेटा फ्रेम we can say is a combination of series where more than one series containing more data. So it is two dimensional and size mutable. We can change the size and upgrade the data frame. So Excel or it is similar in a table in a database or Excel experiment. Like I already said, it is similar in table in database or Excel spreadsheet. So for hands-on practice in Panda, first of all we have to install the Pandas in our local system. So as I already earlier said, there are two ways. First way is from the requirement.txt file, and second is in the same Jupyter notebook file install with the help of pip. So pip install pandas रन करते हैं। तो मेरे सिस्टम में पहले से क्या कहते हैं इंस्टॉल है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा हुआ है। तो नाउ जस्ट लाइक numpy we first of all we have to import the panda. तो import panda as pg। तो लाइक numpy को हम np शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीवेयर numpy डॉट numpy दिस वी कैन यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ numpy जैसे लाइक np। सिमिलर वे इन दिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग panda everywhere we can use pg। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट import कर दिया, it will take some time। now first of all we have to create series with the help of array we can say array। तो array or list, first creating series from array। तो लेट्स से डेटा एक array हमने ये ले लिया लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5। तो लेट्स सीरीज वन मैंने ये सीरीज का नाम दिया S1। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग राइटिंग पांडा वी कैन राइट pd डॉट देर सीरीज के लिए हम एक सीरीज डेटा ये हमने सीरीज बना दिया। अब ना उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट S1 सीरीज वन। तो वी कैन इजली से 1, 2, 3, 4, 5 आर डेटा बट 0, 1, 2, 3, 4 आर by default indexes। We can explicitly mention the index but till now we can see 0, 1, 2, 3, 4, 5 0, 1, 2, 3, 4 are by default indexes। This is from array but we can also create series from dictionary like
creating series from dictionary. तो डेटा इक्वल टू डिक्शनरी है तो ए A1 बी B2 C3. Now S2 series 2 equal to PD dot series data print S2. So in this way we can explicitly mention the indexes like A1, B2 and C3. But there is another way for explicitly mention the index like we can data is like wait shift data and in other list A A B C D E. Like there is a list of data and the second list of indexes. Now I want to combine both where I want to a series in which index is A B C D E and data is 1 2 3 4 5. So series S3 equal to PD dot series डेटा का डेटा हो गया, डेटा की जगह पे डेटा। नाउ अब हमें इंडेक्स की जगह पे ये लिस्ट चाहिए, तो इंडेक्स करके एक पैरामीटर आता है, इंडेक्स इक्वल टू IDX। नाउ प्रिंट S3। तो वी कैन in the output section like A equal to 1, B2, C3, D4, E5. Okay, now second part is creating data frame with the help of dictionary. So creating data frame with dictionary. So this is my dictionary in which there are three columns: name, age, place. In the name section, Vijay, Dinkar and Yash, age 20, 21, 22, and place Bihar, Bangalore and Uttar Pradesh. Now I want to convert this dictionary in data frame. So df data frame, we can write df instead of data frame, df equal to pd dot data frame। नाउ इसका मुझे डेटा फ्रेम करना है, अब इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट df। when we run the see this is 2D table in which there are three column: name, age and place, and this is by default indexes 0 1 2. We can change it easily if you like. This is data frame. Now if you want to, how can we can check that this is 2D array. So import numpy as np dot array। अगर इसमें हम df देते हैं तो ये हमें 2D array रिटर्न करेगा। सी 2D array हमें रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली डेटा फ्रेम्स 2D array को प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में हमें देता है, और ये वी कैन से दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज लाइक देयर इज अ सीरीज कॉल्ड नेम विजय दिनकर यस, एज 20 21 22 एंड प्लेस बिहार बंगाल उत्तर प्रदेश। नाउ इफ यू वांट टू add some new column in it, तो df
Now I want new column of salary. So we can easily salary 50,000, 60,000 and 70,000. Now DF. So we can see that we can easily see Vijay in there is a new column added in the data frame which is called salary. Now I want to delete this is the way of adding new column. Now we can delete column df dot with the help of drop function drop. I want place. ये एरर शो करेगा. It will take some time. ये एरर शो करेगा axis not found in axis but in the but place नाम का तो एक कॉलम है. तो इसमें दिक्कत क्या है कि जब ये df डॉट ड्रॉप करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सिस रो वाइज लेता है. आई मीन एक्सिस ये बाय डिफॉल्ट जीरो है. जीरो मीन्स रो वाइज एंड वन मीन्स कॉलम वाइज. तो हमें कॉलम वाइज में प्लेस को डिलीट करना है. तो हमें यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू वन रखना है. नाउन ड्रॉप हो गया. लेकिन अगर हम फिर से अगर डीएफ करते हैं तो वो उसमें रहेगा ही. डीएफ प्लेस है क्योंकि डीएफ डॉट ड्रॉप जो है ये एक टेम्परेरी ऑपरेशन है. अगर इसको हमको परमानेंट करना है कि डेटा फ्रेम में मुझे परमानेंट करना है तो इन प्लेस एक पैरामीटर इसको ट्रू कर देंगे तो ये हमारा परमानेंट ऑपरेशन हो जाएगा. नाउ रन दिस सेकंड कॉलम ट्रू. तो नाउ डीएफ में प्लेस हो चुका है. नाउ ये डेटा फ्रेम बन गया. नाउ अब हमें एक्सेस करना है कि हमें ये पहला रो करना है. अगर रो वाइज एक्सेस हमें चाहिए तो df डॉट लॉग करके एक फंक्शन आता है जो हमें रो वाइज एक्सेस एलिमेंट करके देता है. तो 0 और df डॉट लॉग करते हैं तो पहला रो का निकाल के हमें दे देगा कि नेम विजय एज 20 सैलरी 50,000. एंड इफ एक्सप्लिसिटली हमें सिर्फ विजय नाम चाहिए तो एक और मतलब रो 0 और कॉलम 0 में पहला एलिमेंट तो ये हमें ला के दे देगा विजय. ये वार्निंग है, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम. नाउ अगर हमें इसी में अगर कॉलम वाइज में चाहिए तो उसके लिए अलग फंक्शन है आई लॉक करके df डॉट आई लॉक. अगर इसमें हम 0 करते हैं तो ये हमें सारा डिटेल्स ला के दे देगा. लाइक सेम कि जो इंडेक्स है इसका सारा डिटेल्स ला के देगा तो ये हमें विजय 20,000 देगा. और इसी में अगर हम फिर से 0 करते हैं तो एक्सप्रेस विजय हमें ला के देगा. अब इसमें एक फंक्शन आता है df डॉट डिस्क्राइब जो हमें इस डेटा फ्रेम का स्टैटिस्टिकल समरी ला के देता है. व्हाट डू मीन स्टैटिस्टिकल समरी क्या होता है जो उसमें डॉट डिस्क्राइब या df डॉट डिस्क्राइब. तो जितने भी हमारे डेटा फ्रेम में जितने भी ऐसे न्यूमेरिकल कॉलम है उसका काउंट बता देगा कि कितनी काउंट नंबर ऑफ एज कितने हैं 3 है. सैलरी कितना है उसका उसका मीन कितना है एज कॉलम का. स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है. मिनिमम नंबर कितना कौन सा है. 25 परसेंटाइल कितना है. 50 परसेंटाइल कितना है. 75 परसेंटाइल कितना है. मैक्सिमम नंबर कौन सा है. तो ये लास्ट के जो 5 है ना मिनिमम 20 मिनिमम टू मैक्स है इसको 5 नंबर समरी कहते हैं जो आपको यश भैया बताए होंगे. नाउ इसमें एक आता है अगर इसमें मुझे नल वैल्यू चेक करना है कि कोई ऐसा कॉलम है. इसके लेकर हम एक डेटा सेट यूज करते हैं. ये एक डेटा सेट है ड्यूरेशन डेटा पल्स हेल्थ डेटा सेट है. उसको मैं कमेंट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा
तो आप वहाँ से देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस डेटा सेट में क्या है, पहले यूज करते हैं इसको। तो df1 इक्वल टू pg डॉट, अब ये CSV फॉर्मेट में, तो उसके लिए CSV फाइल को करने के लिए एक फंक्शन है रीड CSV कॉमा और फाइल नेम डेटा, ये डेटा CSV। तो जब इसको रन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिखता है। ड्यूरेशन दिखा दिया, डेट दिखा दिया, पल्स दिखा दिया, मैक्स पल्स, कैलोरीज, ये सब दिखा दिया ना। अब इस इतने सारे डेटा है, तो बहुत सारी डेटा, अगर ये तो 31 डेटा है, तो इस वजह से हमें पता चलेगा। बट इन रियल लाइफ में हमें बिलियंस ऑफ रो, मिलियंस ऑफ रो रहते हैं, तो उस समय ऐसे नहीं चेक कर सकते क्या डेटा कैसे है। तो उसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स है जो हम डेटा को हम चेक करते हैं, लाइक df.info। तो इस डेटा सेट का जितना भी हमें इंफॉर्मेशन है वो इससे पता चल जाएगा। एक डेटा से, ये एक डेटा फ्रेम है, df जो है डेटा फ्रेम है, इसमें 3 इंटी 0 से 2 डेटा कॉलम, टोटल 3 कॉलम्स हैं। कॉलम्स नेम में क्या क्या, नेम, एज, सैलरी है। फिर कितने क्या कहते हैं एक्चुअल वैल्यू, इसमें मतलब मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो 3 सारे फुल हैं। और ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप का एक ये नेम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बेसिकली स्ट्रिंग है, एज 6 इंटीजर है और सैलरी भी इंटीजर है, ये सब बताया। और ना अगर इसी का अगर हमें स्टैटिस्टिकल समरी चाहिए, तो df1 डॉट डिस्क्राइब करेंगे, तो सी ड्यूरेशन, इस सारे इसमें क्या क्या ड्यूरेशन, पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरी, ये सारे क्या कहते हैं, हमें इसका स्टैटिस्टिकल समरी दे दिया कि काउंट टोटल 32 है, पल्स भी 32 है, मैक्स पल्स 32 है, कैलोरी 30 है, ये समरी दे दिया। अगर हम चाहते हैं कि इसमें जैसे दिखा दिया कि एज क्या कहते हैं, सैलरी इंटीजर है, लेकिन मैं चाहता हूँ सैलरी फ्लोटिंग टाइप में हो, मुझे डेटा चेंज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं पांडा की मदद से। df सैलरी इक्वल टू df सैलरी, एक हैश टाइप, इसको कन्वर्ट करना है हैश टाइप फ्लोट। जब इसको रन करते हैं, नाउ df, दिस इज कॉल्ड df1, सॉरी, df1, ये एरर आ गया, क्या एरर, ओके, इसमें सैलरी का सेक्शन है ही नहीं, तो इसमें ओके ओके ओके, ये यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे df.info होगा, तब इसका देगा। तो हम दे दिया कि ड्यूरेशन, रेट, पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरी, तो ये दे दिया। अब इसी को अगर यहाँ पे हम सब चेक करें, इसी में हम चेंज करना है डेटा टाइप, तो ड्यूरेशन को हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ड्यूरेशन, इसको अगर रन करते हैं, ये हो गया। अब अगर इसको शो कर, df1 जो हो गया हमारा, देखो पहले इंटीजर में सिर्फ 60 था, लेकिन फ्लोट में हमें पॉइंट के बाद भी आ गया, तो ये हो गया फ्लो डेटा टाइप चेंज करना। उसके बाद इसमें हम न्यू कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस किए थे। अब मुझे अपडेट करना है, मुझे मैक्स पल्स में मैक्स पल्स में 50 प्लस करना है, तो df, ये df1 मैक्स
मैक्स पल्स है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसमें +50 ऐड हो जाए सारे में। तो ये हो गया df1। तो पहले पहले 130 था, अब 180 हो गया, प्लस सब में सारे कॉलम ये एक एक सेक्शन में +50 ऐड हो गया। नाउ अब अगर इस डेटा को हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे NaN नॉट ए नंबर, NaN नॉट ए नंबर, NaN दैट मीन्स ये ब्लैंक मिसिंग वैल्यू है यहाँ पे। तो इसको इसको अगर क्या कहते हैं सॉल्व करने के लिए पहले हम चेक करेंगे टोटल डेटा सेट में कितने मिसिंग वैल्यू थे। उसके लेकर TF एक फंक्शन है इज नल। जब इज नल करते हैं तो वो ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर पूरे डेटा सेट में जहाँ पे अगर मिसिंग वैल्यू वहाँ पे वो ट्रू दे देगा। जैसे यहाँ पर एन नॉट ए नंबर था, मिसिंग वैल्यू था, तो यहाँ पे ट्रू हो गया, और इसी तरीके से एक यहाँ पे ट्रू हो गया, एक यहाँ पे ट्रू हो गया। बट ये छोटा डेटा सेट है इसलिए हमें पता चल गया। बट अगर लार्ज डेटा सेट है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए कर एक फंक्शन है सम। तो हम जितना डेटा सेट में जितना भी क्या कहते हैं मिसिंग वैल्यू सबका काउंट दे देगा कि ड्यूरेशन में 0 मिसिंग वैल्यू है, डेट में 1 मिसिंग वैल्यू है, पल्स में 0, मैक्स पल्स में 0, कैलोरी में 2 है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर द टाइम बिंग इस मिसिंग वैल्यू को हम 0 से फिल कर देंगे। बट जो एक्चुअल मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करने का तरीका है वो बेसिकली 3 तरीका है, मीन, मीडियन, मोड। अगर डेटा सेट हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है तो उस मिसिंग वैल्यू की जगह पे उस कॉलम का जो उस कॉलम है उसका हमें मीन से रिप्लेस करना है। अगर उसमें अगर आउटलायर है तो उस केस में मीन हमारा फेल हो जाएगा, तो उस केस में हमें उस मिसिंग वैल्यू को उस कॉलम के मीडियम से रिप्लेस करना है। और अगर वो कोई कैटेगोरिकल सीरीज है तो उसको फ्रीक्वेंट जो सब ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है उससे रिप्लेस करना है। तो इस केस में उसको कह सकते df1 डॉट फिल NM करके एक सेक्शन है 0, और फिल NM मतलब मिसिंग वैल्यू को 0 से हमें कर देना है। तो जब अगर ऐसे करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो मैंने बताया कि ये सही तरीका नहीं है मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करने का। तो इस केस में अभी हम इसको क्या करते हैं, कैलोरी वाले सेक्शन में इस मिसिंग वैल्यू को उसके मीन से रिप्लेस करते हैं। तो df डॉट कैलोरी, इसको हमें df1 कैलोरी इसको फिल करना है किससे, df जो कैलोरी है उसके मीन से। df जो कैलोरी वाला सीरीज है उसमें जो कॉलम है उसका जो मीन है उसको फिल एन, पहले यहाँ पे एन फिल एन की जगह पे 0 देते लेकिन उसका हमको मीन देना है यहाँ पे। तो df डॉट df df1 कैलोरी डॉट मीन जब करते हैं तो हमारा कॉलम df अपडेट हो गया है, तो उसमें जगह पे मीन आ गया होगा। सी where is missing value 28 in the row number 28, see this is 304.68, ये मीन है। एक और जो है 304 ये सारा जब मिसिंग वैल्यू को क्या कहते हैं मीन से रिप्लेस कर दिया गया। अगर एक एक्सप्लिसिटली हमें एक सीरीज मतलब कॉलम निकालना हो तो सिंपली हम df1 और जो कॉलम हमें चाहिए लाइक मैक्स पल्स चाहिए तो हमें करेंगे तो वो कॉलम पूरा आ जाएगा। अब कुछ एट्रीब्यूट्स है लाइक अगर
डी एफ डॉट, अगर इस डेटा सेट का हमें टॉप 5 एंट्री लेना हो तो एक एट्रीब्यूट है डी एफ वन डॉट हेड। जब इसको रन करते हैं तो टॉप 5 हमें जो एंट्री है वो दे देगा। अगर उसी में हमें 10 चाहिए तो इसके अंदर हमें 10 लिख देंगे तो वो हमें 10 ला के देगा, 10। अगर इसी में लास्ट 5 हमें एंट्री चाहिए तो डी एफ वन डॉट टेल करते हैं तो इसमें लास्ट 5 के हमें एंट्री मिल जाएगा। इसी का अगर हमें डेटा सेट चाहिए, मतलब इन्फो चाहिए, डी एफ वन डॉट इन्फो, तो ये सारा इंफॉर्मेशन निकाल के दे देता हमें कि ये ड्यूरेशन में क्या कहते हैं, जिस लाइक डेट में एक मिसिंग वैल्यू था तो यहाँ पे 32 के बदले हमें 31 ही नन नन नल वैल्यू दिया, मतलब इसमें वैल्यू है बाकी एक में मिसिंग वैल्यू है। और ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। इसी तरीके से पल्स में 32 है, मैक्स पल्स में 32 है, और कैलोरी में मैंने अभी पहले इसमें 30 होता बट मैंने अभी दो जगह पे मीन से रिप्लेस किया है तो इस वजह से ये फिल्म दिखा रहा है। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस डेटा सेट दे दूंगा, म्यूजियम डॉट CSV। इस पर आप सारे क्या कहते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पांडा को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, जितना हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें यूज़फुल होगा। एंड यस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।